वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की जी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल की पेशकश, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। हम सब एक हैं और ये मानवता का संदेश है। और हमारे डायरेक्टर साहब का ये मेन मकसद है, हम सब इकट्ठे होके बैठें, क्योंकि हम सब हैं ही एक। और जब हम सब एक होंगे, और जैसे आज जो मुद्दा है, किसान के एक आंसू ने पूरे भारत को जगा दिया, और ऐसे हमने जागना है। और हर तरफ से यही प्रचार हो रहा है कि आप सब जागें। और जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वॉइस ऑफ मानवता सबका तहे दिल से स्वागत करती है और सबको न्योता देती है कि आप जब भी चाहें, आपकी जो सच की बात है, आप चैनल द्वारा जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और आज सबसे बड़ी एक दुखदायी घटना आई है, क्योंकि है तो गुरु का भाना। गुरु ने जितने श्वास की पूंजी इंसान को बख्शी है, उसके हिसाब से इंसान चल जाता है। लेकिन हमारे सिख पंथ के कीर्तनीय भाई मेघ सिंह जी, जो एरिजोना में रहते थे, वो काफी दिन से हॉस्पिटल में थे, क्योंकि कोरोना हो गया था उनको। और वो सबको विछोड़ा देके चले गए हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। और परिवार के साथ में चैनल खड़ा है, और परिवार को मालिक ऐसी कृपा करे, क्योंकि ये जब इंसान जवानी पने में चल जाता है तो बहुत बड़ा दुख होता है, और परिवार को बहुत घाट होती है। और हमारे सिख पंथ को भी, क्योंकि सिख पंथ के कीर्तनीय थे, अच्छे कीर्तनीय थे, अच्छे इंसान थे। क्योंकि गुरुमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, और आओ हम सब उनको श्रद्धांजलि भेंट करें और परिवार के साथ खड़े हों। परिवार को ऐसी अरदास करें कि मालिक शक्ति दे। और भाई कीरत सिंह जी 1 मिनट के लिए भाई मेघ सिंह जी को श्रद्धांजलि देंगे, प्लीज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरे ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮੇघ ਸਿੰਘ, ਜੋ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 55 ਸਾਲ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ 55 ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ
ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी, हाँ जी आप जी भी 1 मिनट वास्ते अपने भाई मेघ सिंह जी वास्ते 2 शब्द प्लीज। हाँ जी, पहले तो मैं बेनती करदा कि सतगुर दा हुक्म है, सबना मरना आया विछोड़ा सबना, बिल्कुल पूछो जाए सियाणिया आगे मिलन के ना। क्योंकि जिथे एक ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਜੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਸੰਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਵਾਜੇ ਤੇ ਸੀ ਮੇਘ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨ ਔਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਦੌਲਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
जियो हाँ जी। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ना, इंसान ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कबीर जब हम आए जगत में, कबीर जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। हाँ क्योंकि ये तुलसीदास जी, यादें ही रह जाती हैं, बाकी तुलसीदास कुछ नहीं है। हाँ जी, तुलसीदास हाँ, जी हाँ ते जी बड़ा बड़ा एक सोना और भी लिखा है, किसी कवि ने लिखा है, कहते हाँ एक जी। बार मैं निकला सफर को दिल में कुछ अरमान थे। प्लीज किसी का टीवी चल रहा है, प्लीज बंद कर दो प्लीज। ये टीवी पता चल नहीं रहा है कौन है, किसी मुझे का बंद मेरे कर ख्याल दिया। पता नहीं। हाँ जी प्लीज बीच। हाँ टीवी चल रहा है किसी एक का, बार टीवी मैं बंद। निकला सफर को दिल में कुछ अरमान थे, हाँ जी, एक तरफ जंगल बसा और एक तरफ शमशान थे। क्या बात है, बहुत अच्छा। हड्डी पर मेरा पांव पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे, अरे चलने वाले जरा चल संभल के, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे। क्या बात है, बहुत अच्छा। हकीकत में है, जो भी हाँ जी। आया है उसने उन्हें जाना है, जाना है। जो उपजियो तो सो बिनस बिनस है। है पर परवाज एक के यादा का। है, याद रह जाती है इंसान की, और याद में इंसान जीता है, याद में इंसान मरता है। और आज हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको हम पूज रहे हैं, वो अच्छे कर्म करके गए। उनको याद करता है इंसान, वो अच्छे कर्म करके जाता है। और हमारे सब परिवार की तरफ से और वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से सारे परिवार को दो हाथ जोड़ के बेनती है कि एक भाना है, उस गुरु का भाना है, इसमें हमारा चारा चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम कुछ कर, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब मौत की बात आती है ना, मौत अपना टाइम इंसान लिखा के आता है। तो हम सब परिवार के साथ में हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, और हम सब जो भी हैं। और भाई अवतार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी भाई अवतार सिंह जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी, आप जी कुछ बोलो, अपने विचार रखो भी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। फतेह। गुरु महाराज की कृपा हुई है, आप सारिਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਪੂਰੀ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ, ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਾਏ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ,
ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी सरदार अवतार सिंह जी, ਹਾਂਜੀ हीरा साहब जी, हाँ जी तुसी 2 मिनट वास्ते कुछ गा के सुनाओगे? ਸੁਣਾ इसी ਦਿੰਦੇ। उत्ते 2 मिनट का कुछ, हाँ जी सुनाओ प्लीज। ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਦ ਹੋਵੇ, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ। क्या बात। ਸਿਬਤਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात बहुत है, वाह जी वाह। हीरा साहब कमाल करते हैं, ਤੁਹਾਡੀ बहुत आवाज भी अच्छा। बड़ा एक आनंद है। वाह, बहुत बड़ा अच्छा। धन्यवाद है। तो वाइस मानवता वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप जी ने बड़ा सोना इस वेले, क्योंकि आप जी की आवाज भी जिस तरह बारिश पैंदी है ना, हाँ कदे ऊपर जाती है कदे थल्ले आउंदी है। ਭਗਤ ਸੂਰ ਬਾਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾਨ ਮਾਤਾ ਬਿਰਲੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਏ, ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਤਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। क्या बात है। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। वाह जी वाह, क्या बात। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छा जी, बड़ा धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ आंदे हां ते हाँ जी भाई कीरत सिंह जी, अब हम चलो श्रद्धांजलि सबने दी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और अब हम किसानों के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा आज का है किसान के एक आंसू ने पूरे भारत को जगा दिया। तो भाई कीरत सिंह जी जो शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि और उनके बारे में कुछ जानना पाए आप प्लीज। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 70-75 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
3 ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ 8-10 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਬਿਲੀਅਨ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ, ਧਾਨ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਲ प्रसाद जी गौतम है? हाँ जी, सिद्धांत कुमार जी, डॉक्टर सम्राट, विनोद सम्राट हैं? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप सर। हमारा आज का मुद्दा है, एक किसान के आंसू ने पूरे भारत को जगा दिया, इसके लिए आप क्या बोलेंगे प्लीज? हम बोले सर? हाँ जी, हाँ जी, आप कोई बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पूरे देश के किसानों ने पूरी तरीके से, जब टिकैत साहब ने बातें रखी, हाँ जी, और बात रखते समय जब उन्होंने, उनके आंख से आंसू आ गए और देश के सभी किसान मजदूरों को से ये रहा नहीं गया। ये उनके अंदर की बातें थी, सभी लोग चल पड़े। और जिस तरह से टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, पहले तो सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो सिंधु बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, जो भाषण होता था वो पंजाबी में होता था, तो हिंदी भाषी के लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही अखबार निकलना शुरू हुआ, उन्होंने समझना शुरू कर दिया, तो एक हुजूम सा चल पड़ा। ठीक है। और जो अभी तक किसानों की शहादत हुई है, अब ये गांव-गांव तक पूरे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आंदोलन चल पड़ा है। हाँ जी। और ये जो 3 काला कानून जो पारित किया है किसान सरकार ने, उसका हिंदी ट्रांसलेट करा करके और भाषा में लोगों को बांटा जा रहा है। हाँ जी। धीरे धीरे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि कितना गलत ये कानून पास हो गया। और वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आज पहली बार मैं जुड़ा हूं, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो भी मार्गदर्शन रहेगा उसका पालन किया जाएगा। आपके पास फिर आते हैं। हाँ जी भाई साहब जी, अपने मंगल प्रसाद गौतम जी है जुड़े हुए हैं। आइए सर जी, आप बोले। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। उनकी आवाज नहीं आ रही शायद, है ना? हेलो। हाँ जी सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रामचंद्र परमार बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, जय मूल निवासी साहब, बोलिए सर। जय मूल निवासी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही आपकी, बोलो आप। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। ये जो आज जो विषय रखा गया है कि किसान की आंखों में आंसू, यानी बहुत बड़ा दर्द मामला सामने आ रहा है। किसान क्यों रो रहा है? क्योंकि किसान की जो जमीन है
जो जमीन को अपने बच्चों की तरह पालता है, जमीन को देख रेख करता है, हाँ जी, वो सारी जमीन पूंजीपति के हाथ में जा रही है। इस देश के शासक लोग जो है उस जमीन को, उस धरोहर को अपने कब्जे में करना चाहती है और भारत के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। हाँ जी, भारत के किसानों को गुलाम इसलिए बनाना चाहती है कि भारत के मूल निवासी लोग हैं और पहले इनने मजदूरों के कानून को खत्म किया, उसके बाद में कृषि कानून लेकर आए। हाँ जी, उनको ये पता है कि भारत में मनुस्मृति कानून जो था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा खत्म किया गया, हाँ जी, वो मनुस्मृति कानून भारत में वापस लाने वाले हैं, क्योंकि 1925 से इनने 100 साल का सपना देखा था कि भारत में मनुस्मृति कानून वापस लाएंगे। हाँ जी, तो ये जो मनुस्मृति कानून भारत में लाने के लिए किसानों की जमीन को अपना कब्जा करके उनको गुलाम बनाकर भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मूल निवासियों को मजदूर बनाकर काम करवाना चाहते हैं, हाँ जी, ताकि भारत में वापस उनकी सत्ता रहे, मनुस्मृति कानून रहे, संविधान खत्म हो जाए। हाँ जी, सीधी सी बात है, अभी इतना बड़ा आंदोलन जब किसानों का चल रहा है, इसमें और तादाद बढ़ने की पूरी उम्मीद है और बढ़ेगा। इसमें मजदूर लोग भी अब आने वाले हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। हम जी। धरती को माता मानते हो, धरती हमारी माँ है, जी, ये सबको पता है, धरती माँ है। तो क्या बराबर। इन्हें बीजेपी वालों को नहीं पता, मोदी को नहीं पता, अमित शाह को नहीं पता कि हमारी माँ है जिसको वो बेच रहे हैं? ये क्या वो इनको पता है? अपनी जो सगी माँ है, जो उनकी सगी माँ है, उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच जैसे सकते। हमारी धरती माता को बेच रहे हैं, पूरे भारत की माता को, भारत माता को बेच रहे हैं, भारत माता। एक माँ तो बराबर। छोटा लफ्ज है और भारत माँ का कितना बड़ा नाम है, और उसको ही बेच जी। रहे हैं। जब भी लोगों की अभी आंखें खुली नहीं है, अभी भी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं, क्या वो जागे नहीं? वैसे जो धरती माता की जय बोलते हैं वो उनके मन से नहीं है, सिर्फ एक राजनीति है, राजनीति मुद्दा है और कुछ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही। वो राजनीतिक मुद्दा ही इस देश के अंदर भारत माता बोलते हैं। आपका प्रश्न सही है कि वो माता बोलते और माता को ये बेच रहे हैं। ये इनका काम है भारत में किसी भी चीज को, संपत्ति को बेचा गया और वो बेचे जा रहे हैं। इनको आप और हमारे ऊपर दया नहीं है, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं। बिल्कुल। इनको हमारी संपत्ति से और हमारी माता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको सिर्फ राजनीतिक करना है। और इस देश में कई सालों से मैं भी देखता आ रहा हूं, आज मेरी 60 साल की करीब उम्र हो गई है, तब से देश के अंदर हर कोई ना कोई मुद्दा लाकर भारत में समाज को तितर बितर करते हैं और इस हमारी व्यवस्था को भंग करते हैं। अब किसान आंदोलन में अगर हमारे साथी, में एक प्रश्न आपके सामने एक बात रख रहा हूं कि इतने दिनों से हमारे किसान लोग ठंड में ओले गिरे हैं, बरसात हो रही है, बारिश गिर रही है, जिसमें डटे हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि इस देश की धरती को बचाने के लिए किसान सिर्फ पंजाब से ज्यादा निकला और इनकी वजह से आज पूरे देश के अंदर किसान जाग चुका है, जागृति आई है। जी, जागृति आई। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब आज जब अंग्रेज शासन भारत में था, सबसे ज्यादा सिखों ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल 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 सही बात। और आज भी वही वक्त आ गया है, बिल्कुल आज भी ये वही वक्त है, फिर ये चाहते हैं। और ये हमारी आखिरी लड़ाई है, ये आज आखिरी लड़ाई है, भारत में आखिरी क्रांति है। ये आंदोलन जो है वाकई लास्ट है। अगर इसमें हम जीत गए तो हमारा भारत वाकई एक भारत बन जाएगा। जी, सही बात। लेकिन अगर आज हमारे साथ जैसा ये व्यवहार कर रहे हैं, जैसा अत्याचार कर रहे हैं और सब लोगों को ऐसे तड़पा रहे हैं, अभी कल की बात है, उधर मोदी साहब अपने बंगाल में मतलब वो प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहते अगर आप बीजेपी को वोट दोगे, इस बार बीजेपी को बंगाल से जिताओगे, तो कहते किसानों को जो हक नहीं मिले वो मैं दिलाऊंगा। जो अब देखो, नहीं ये डंडोरा, जैसे भंगी डंडोरा पीटता है ना, जो भंगी वाला काम कर रहा है। जो बिहार में बिहार में दिलवा दिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहां देखो, अपने दिल्ली को छोड़ के वहां पर भाग गया है, वहां पे भी प्रचार कर रहा है। लोग
अब हमारे लोग क्यों नहीं जाग रहे, हमारा भारत, क्योंकि कुछ स्टेटें अभी भी हैं जो नहीं जागी हैं, कुछ स्टेटें। हाँ, और नहीं सबसे जागी, बड़ी बिल्कुल खुशी मुद्दे की है बात। कि हमारी यूपी जाग गई है, हमारी यूपी जागी है। इससे हमारे जो आंदोलन में बहुत प्रभाव पड़ा है और लोगों को इनकी आंखें अब खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि इनको पता अब सारा, क्योंकि टिकैत साहब ने इसीलिए इनको अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है, क्योंकि सारा भारत इकट्ठा होने वाला है। तो परमार इसमें- साहब आपके पास दोबारा आते हैं जी, आपने बहुत जी। अच्छे विचार रखे, आपके पास दोबारा आते हैं फिर। ए, और भाई गुरमीत सिंह जी, जी, हाँ जी, जी एक सर और जी, आप एक बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, हाँ जी, धन्यवाद। बोलिए हेलो, बोलिए सर। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो, आप कोई कोई बात नहीं, आप बोलो। बोले। कब है? अच्छा, गारन के राकत का। हाँ जी, बोलिए परमार जी, बोले हाँ, आप कुछ। इसमें है ना टिकट हाँ जी, से मेरा निवेदन था, हाँ जी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा टिकट साहब से मेरा निवेदन था कि भारत में जितने भी सांसद लोग हैं, हाँ जी, और ये सांसद लोग भारत की सत्ता पर बैठे हुए हैं और इन्हीं के हाथों से इस देश का कानून बना है, जो कृषि कानून बना हाँ है। जी, बिल्कुल। मेरा ये निवेदन है कि हर सांसद के घर पे जाकर उनका स्वागत ढोल धमाके से करें, हर सांसद के घर जाकर, ताकि उनकी वजह से इस देश के अंदर सत्ता पर बीजेपी बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे विचार और हैं जी। उनका अगर हो सके तो उनका चेहरा काला करें। बिल्कुल, नहीं नहीं, कुछ बहुत नहीं अच्छी बात करना, है, ये बहुत अच्छी बड़े बात है, प्यार होना चाहिए। मोहब्बत से। हाँ जी, क्योंकि अगर ये सत्ता पे बैठे हुए लोग अगर हाथ खींच लेते हैं तो सरकार अभी बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, सर तो सरकार को खत्म करने के लिए हमने चुनकर जो सांसद को पहुंचाया है, बस उनको बेइज्जत कर दो। भेज जाओ। तो शुरुआत बस हो ये गई है, मेरी वैसे बात हो थी। गई है शुरुआत, ये हाँ, हो जय रहा है, मूल्यवासी। शुरुआत हो गई है। तो ये जी। टाइम दूर नहीं है, ये टाइम आने वाला है, हमारे सामने आएगा, अभी कुछ ही बिल्कुल। दिनों की बात है बस। चलो आपके पास जी, दोबारा जी, आते हैं जय सर जी। मूल्यवासी। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह। बस, हाँ जी सर जी, धन्यवाद। आप हिंदी में बोलिए प्लीज, हिंदी में बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, अभी अभी परमार जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो मैं तो जैसे पहले भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं वॉइस ऑफ चैनल से ही, जब भी हमने यही रिक्वेस्ट की है पूरे भारत के लोगों को कि वो जब तक हम एक नहीं होंगे, जैसे अभी भी बोल रहे थे भाई साहब कि जो उनके सांसद भी हैं, उनके कुछ लीडर हैं जो बीजेपी के लीडर हैं, उनके अंदर भी ये इंसानियत जागनी चाहिए, क्योंकि वो पहले इंसान और फिर उसके बाद पार्टी से जुड़े हैं। पहले इंसान को रोटी चाहिए जीने के लिए, जिंदगी के लिए रोटी चाहिए, अन्न चाहिए उसको पहले, ये पार्टी तो फिर बाद में बनेगी ना। हाँ जी, बिल्कुल। पर आज अफसोस इस बात का है, हैरानीजनक मामला ये है, सामने आ रहा है कि आज इतना कुछ होते हुए भी जो अंधभगत है वो अभी भी ये कह रहे हैं। अभी अभी कल परसों की वीडियो आपने सभी ने देखी होगी, जो तोमर जी कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है, आपने सभी ने देखी होगी शायद वो वीडियो। बिल्कुल। उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें ये बता दीजिए कि आप वो इसमें काला क्या है। अब काली बीजेपी है। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही कह रहा था, क्योंकि जब सारा कुछ ही काला हो जाए तो काले के ऊपर काला क्या दिखेगा। क्या सही बात दिखेगा? जब सब कुछ ही काला है तो उसमें क्या बताएं। अगर काले के ऊपर किसी व्हाइट के ऊपर कोई काला हो तो हम बता दें हाँ भी व्हाइट के ऊपर ये काला है, यहाँ पर इसको व्हाइट कर दो। जब है ही काला तो काला आपको इस करके नहीं दिख रहा कि वो है ही काला सारा कुछ। आप बीजेपी की सारी ही जितने भी करतूतें हैं ये सबके सामने आ रही है। पता उन लोगों को भी है जो इनके अंधभक्त है, पता उन लोगों को है कि अभी सब कुछ गलत है, पर वो अपनी गलती का पश्चाताप अभी भी नहीं कर रहे हैं कि हमने गलती की है। अभी भी पंजाब की वीडियो आपने देखी होगी, सुबह हमने देखी है, एक नवा शहर की वीडियो देखी है और एक फरीदकोट की देखी है। दोनों शहरों की वीडियो अभी देख लो कि विजय सांपला जी भी अभी अपने नंबर बना रहे हैं।
बीजेपी किसानों के हक में है, बीजेपी किसानों को हक दिलाने चाहती है। भाई जब हक नहीं लेने चाह रहा है कोई भला नहीं चाह रहा है, तुम क्यों दे रहे हो जबरदस्ती उनको? नहीं, ये तो जबरदस्ती वाला काम है। देखो ना, अब स्मृति ईरानी को इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया था, हाँ जी, वो खुद पढ़ी नहीं हुई है, तो मतलब अब वो कहते अंधों में काना राजा, हाँ बिल्कुल। उनका सिस्टम वही चल रहा है। देखो ये अब जिसको हाँ, कृषि मंत्री बनाया उसको जमीन के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वो उपदेश दे रहा है किसानों को कि इसमें फायदे हैं। हाँ, जो बात बोते तो हैं, यही है ना, जो बात जाग तो के हाँ, इतनी परेशानी में खेत। उनको समझा हाँ रहे जी, हैं जो बचपन से मिट्टी में रहे हैं, जो बचपन से किसानी करते हैं, बचपन से आज तक जो, और 97 साल के बुजुर्ग उसमें के आंदोलन में बैठे हैं, जिनकी तकरीबन 97 साल में से 5-10 साल निकाल लो तो कम से कम 80-85 साल उनके मिट्टी में निकल गए। और उन 80 लोगों साल को उनके ये उसमें बीत गए। उन लोगों को ये समझा रहे, जिन लोगों को ये इनको पूछ के देख लो कि मूंगफली या आलू कहाँ से निकलता, अगर ये बता भी दे तो उन सही लोगों को बात है। ये तो उन कहते लोगों को हैं, ये ज्ञान दे ये रहे तो हैं। कहते हैं आलू मशीन में ऐसे डालेंगे और वो सोना बन के निकलेगा। हाँ, तो अभी इनकी पढ़ाई देख लो ना, कि अभी इनको कृषि का ज्ञान कितना हो सकता है, अब यहीं से अंदाजा लग जाता है। यहीं से पता चलता है भाई आलू का सोना कैसे बनेगा। तो वो ऐसे आलू का जब सोना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो क्योंकि अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, अभी न्यूज पढ़ रहा था कि आलू का सोना कैसे बनेगा। उसके लिए ये है कि जो स्टोर हैं, जो व्यापारी हैं, आलू खरीद के स्टोर कर लेते हैं। हाँ जी, अभी उसमें अभी आलू पैदा हुआ तो उसका रेट है 9 रुपए किलो। हाँ जी, आलू खत्म हो जाएगा मार्केट में तो फिर स्टोर से आएगा तो वो 50 रुपए किलो बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल 90 रुपए किलो बिल्कुल। सीधा होता कहीं। हाँ जी, हाँ, अभी पुराना आलू 45-50 रुपए बिक रहा था। अभी नवा बिल्कुल। आलू आ गया तो 9 रुपए कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब किसान से और आ नाले रहा है ना, इन्होंने जो किसान से आ रहा जो तो 9 इन्होंने रुपए कर गोदाम दिया। किसान से आ रहा है, ये पहले हाँ, व्यापारी से आ रहा था, अब किसान से आ रहा है, इस करके 9 रुपए हो गए वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि किसान के साथ तो हमेशा धोखा होता रहा। किसान शुरू से आज से नहीं। हाँ जी, शुरू से धोखा होता रहा। किसान 14, 15, 16, 1700 रुपए क्विंटल बेचता है, लेकिन जो किसान लोग हैं वो जब बीज खरीदते हैं उन्हें आप हैरान होगे कि अभी पीछे हमने खेत में कुछ मक्की बोई थी तो उसमें जो बीज था वो 1000 रुपए किलो था। बीज 1000 रुपए किलो बीज। बताओ, अब बताओ। 1000 रुपए किलो बीज खरीद के, लेकिन जब हम मक्की काटेंगे तो हमारी 1500, 1600, 1700, 1800 रुपए जाएगी क्विंटल। आपको शायद मालूम होगा, अभी पीछे की यूपी की घटना है, आपके इलाके की घटना है ज्ञानी जी, वो 800 रुपए मक्की बिकी है, 800 रुपए हाँ। क्विंटल की, 800 रुपए क्विंटल की बात कर रहा हूं मैं। और हाँ। आप अभी बता रहे कि बीज हमने 1000 रुपए किलो लिया था। अब लगा लो हाँ। क्विंटल में और किलो में कितना फर्क आ अब गया। किलो में देखो, हाँ। यही तो चाह अच्छा। रहे हैं, ये अडानी अच्छा। अंबानी यही चाह रहे हैं कि हम ऐसा सिस्टम बना दे, लोग मजबूर होके ये जमीन हमारे नाम करें। हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक और प्रॉब्लम है। ये जो 3 कानून आए हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि हाँ जी, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो 100 एकड़ जमीन जो है 25 साल के लिए, 20 साल के लिए ठेके पे ले लेगा जमीन को। हाँ जी, उस जमीन के अंदर 20 साल जो भी फसल होगी आप उसमें काम करेंगे। उसमें से आप, अगर आपके यहाँ मक्की बो रखी आपने तो आप उसमें से 2-4 छल्ली भी तोड़कर खा नहीं सकते आप उसमें से। नहीं खा सकते, आपका कोई हक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हाँ, अगर उस मालिक ने बोला है 25 साल भी आप इसमें मूंगफली बोनी है तो आपके बच्चे उसके खेत में से मूंगफली पाड़ कर खा नहीं सकते। नहीं खा सकते, नौकर बन गए ना, नहीं फिर कैसे खाओगे? नौकर नौकर बन बन के गए। तो फिर नौकर बन दूस- गया, अब मालिक नहीं रहे, मालिक वो बन गए। दूसरी बात हो रहा है, अगर किसान की किसी लड़की की शादी होनी है, लड़के की शादी होनी है, या कोई घर में बीमार है, दुख तकलीफ है, तो कई बार किसान क्या करता है कि बैंक में जाता है लोन लेने के लिए। वो लोन भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने व्यापारी के साथ कर रखा है तो जमीन तो बैंक,
जमीन तो उसकी जमीन हो गई है, जमीन जमीन उसकी तो है, बिक चुकी ना, वो 25 साल के लिए बिक चुकी, लीज होगी वो। जमीन तो लीज होगी, जमीन तो जमीन तो बैंक भी किसान की लोन रही, नहीं देगा, बैंक भी जमीन तो लोन नहीं किसान देगा। जमीन तो किसान की रही नहीं, तो किसान क्या देगा उसको, पेपर कौन से पैसा देगा जब पेपर तो है नहीं। आपको लोन तो वो जब लोन नहीं मिलेगा देगा। ना, जब आपके पास जमीन होगी, जब 25 साल के लिए आप उस जमीन को बेच चुके, गिरवी रख चुके, हाँ जी, बिल्कुल, फिर कैसे मिलेगी? वो आपकी रही फिर नहीं वो। यही तो बिल्कुल। यही इनकी। हाँ तो भाई साहब जी आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ भाई अवतार सिंह जी, आपके क्या विचार हैं इसी बात पे? अगर आप हिंदी बोल रहे तो बहुत अच्छा है, बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ਚਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, हाँ जी, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। अवतार सिंह जी हिंदी बिल्कुल, बोलने बिल्कुल। की कृपा कीजिए प्लीज, हिंदी हिंदी प्लीज। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ अच्छा अच्छा ਕੱਟੀਆਂ नहीं नहीं, कड़ी कोई से। कोई गल नहीं बोल रहा, नहीं अच्छा, बोल, चलो कोई गल चलो, नहीं बोल। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जो बेचारे साथ में बैठे ने एक दो, उनके लिए थोड़ा सा। और नहीं, वो बोल नहीं सकते ना। हाँ जी, हाँ कोई जी। गल नहीं, ਤੁਸੀਂ तुसीं बोल ਸਮਝਾ पाएंगे। ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ। हाँ जी, हाँ जी, ਦੇਖੋ हाँ जी, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। हाँ जी, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। जियो ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, जियो, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। हाँ जी, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। जियो, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ। हाँ जी, किसानों के सिर से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपकी बात है। ਹਾਂਜੀ, ठीक कह रहे ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। हो। हाँ ਔਰ जी, ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। हाँ जी, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, हाँ जी, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जियो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। बिल्कुल। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, सही गल। ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ करता है, दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो जो दिल है से बड़ी होती है। मुश्किल से होती है। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਏ से। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਦੀ ਵਿਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी की सार फतेह, वाइफ बहुत से अच्छा। बोले सो निहाल, सत्य, बहुत अच्छी विचार। हाँ। हाँ जी, किरण सिंह जी, फिर आपका। हाँ जी, की कहना चाहते हो जी? बस मैं ये कहना चाहता नहीं हूँ, भाई किरण सिंह। मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा लिखेंगे इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। वाह, क्या बात है। दूसरी बात ये कि ना सता किसान को, किसान हाय देगा, अगर सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खोदेगा। क्या बात है, जड़ से खोदेगा। वाह जी। बहुत अच्छा। किसान ने सरकार बनाई है, अगर किसानों की बात ये सरकार नहीं सुनेगी, किसान राजनीति नहीं करते, किसान सिर्फ ये चाहते हैं कि 3 काले कानून वापस हों और जो है MSP पर कानून बने, ताकि किसी भी किसान का कम मूल्य पे कोई जिड़स, गेहूं, मक्की, मूंगफली, जितनी भी जो अन्न पैदा करता है किसान, वो कम दाम पे जो है, जो अडानी अंबानी जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, वो कम दाम पे ना खरीद सके। हाँ सिर्फ जी, किसान यही तो मांग कर रहा है। किसान ये चाहता है कि उसका
उसका जो मूल्य है, उसको मिले, उसका हक उसको मिले। अपना हक लेने के लिए किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। किसान कोई राजनीति नहीं कर रहा हाँ है, जी, किसान को अपना हक चाहिए। हाँ जी, और मेरी तो ये सरकार से अपील है कि इन गरीब किसानों का जो हक है वो दे दिया जाए। अगर ये नहीं चाहते भी कानून, ये इन्हें कानून नहीं पसंद है, तो आप वापस ले लीजिए। किसान को पर कानून वापस पसंद कैसे है ले लेंगे तो भाई वापस साहब? लीजिए, बिल्कुल 3 कानून वापस हाँ जी, ले ले। चलो किरण सिंह जी, और आपके पास एमएसपी, दोबारा बिल्कुल। आते हैं। अरे हाँ जी, आपके पास दोबारा आते हैं फिर, क्योंकि वो भाई साहब भी, हाँ जी, हाँ जी, परमार साहब आप ही, चलो आपसे सवाल पूछ लेते हैं। एक जी। किसी ने लिखा है, कहते तू रोया क्यों पगले, जी। तू रोया क्यों पगले, तेरी खातिर इनकलाब आएगा, तू देख जी। अब तेरे हर आंसू का जवाब आएगा। क्या बिल्कुल बात और सही बात है, जवाब आ बिल्कुल रहा सही है, बात है। लगातार आ रहा है। और आप इसके बिल्कुल बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 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 जवाब आएगा, और जो रोया है उसका जवाब आएगा, क्योंकि जीत इंसानियत की होती है। बिल्कुल बिल्कुल सच की होती है, बिल्कुल। और ये जो किसान है, ये अन्नदाता है। बिल्कुल 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 ये अन्न उगाकर समाज में देश की जनता को देता है। अन्न उगाकर, बिल्कुल पैदा करके देता है। पैदा करके था। अन्न दाता, अन्न उगाकर देता, इसको बोलते हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अन्नदाता का मतलब होता अन्न उगाकर देता। बिल्कुल देता। बिल्कुल तो ये किसान, जो अन्न उगाकर देश के लोगों को देता है, तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी इनको पालने वाला किसान है, जो रात और दिन खेती में काम करता है। और इनको जब भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहते हैं कि इनको हम गुलाम बनाए, सीधी सी। पर किसान रो रहा है, किसान अपना हक मांगेगा, अगर नहीं मांगेगा तो लेना आता। बिल्कुल बिल्कुल किसान जितना भी यूरिया है, कीटनाशक दवाइयां हैं, वो बहुत महंगी है। डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है। आप डीजल के दाम कम नहीं करेंगे, पेट्रोल के दाम कम नहीं करेंगे, पेट्रोल के दाम डबल करेंगे, और गेहूं के दाम जो है आधे करेंगे जब किसान बेचना चाहेगा। तो ये गवर्नमेंट, क्योंकि जो तेल है वो अंबानी और अंडानी का है, इसलिए वो महंगा जाएगा। क्योंकि किसान के पास फसल है, गेहूं है, मक्की है, तो उसके पास उसको कम दाम में लेंगे आप। हाँ जी, ये किरण सिंह जी हमारे साथ एक और जुड़े हैं, राम कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी सर जी, राम कुमार जी। हाँ जी, बोलिए सर जी। हेलो हाँ जी, सर, स्वागत है आपका। हाँ बोलिए आप सर। सर ये जो किसानों पे आप देख रहे हैं दिल्ली में हाँ जो जी, दंगा हुआ था, जिसमें करीब हमारे 70 किसान भाइयों ने अपनी शहादत दिया था। उससे जो इंडियन मीडिया है, उससे कभी आपने देखा है कि उससे कभी जिक्र हुआ है? वो सत्तर गोदी किसान मीडिया मर है, गए। गोदी या मीडिया है। गोदी मीडिया एकदम नहीं, एकदम। गोदी मीडिया कभी 200 पौने 200 जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर बात नहीं हाँ, करेगा, गोदी मीडिया नहीं करेगा। नहीं नहीं, उसको इंडियन वही चैनल मत बोलिए, उसको इंडियन चैनल मत बोलिए, वो तो हाँ, तो गोदी मोदी मीडिया। चैनल इंडियन, बोलिए, तो अभी मोदी अभी चैनल। रख लीजिए। हम आपसे सहमत हैं सर, हम आपसे सहमत हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। फिर उसमें यदि वहीं पर दिखाता है कि 15-20 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तो गोदी मीडिया अरे उसको उछालती है कि ये जवान मतलब मारे गए, किसानों का मतलब वैल्यू बहुत जीरो। यानी ये सिर्फ मतलब वो समझती है कीड़े मकोड़े हैं किसान, वो मर रहे हैं, हाँ जी, उनका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। राम हाँ, कुमार जी किसी आपके ना, पास आ रहे हो अभी, कुछ अभी डॉक्टर विनोद जी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर विनोद जी। हाँ जी, यार सर देख, इसमें बातें हैं कि सन 67 में 1 कुंटल गेहूं 10 ग्राम सोने के बराबर था। तो हाँ जी, पार्लियामेंट में जितने भी हमारे सांसद जीत के आते थे, इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई हम भी किसान के बेटे हैं और किसानों के हक की बात करें। अभी परमार बिल्कुल जी ने कहा कि किसान
सांसदों के पास जाए, वहां ढो- बाजा बजाए, ढोल लेकिन बजाए। जो हाँ सांसद हैं ये बिके हुए लोग हैं, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात। पूरी तरह से बिके हुए लोग हैं। और जो सरकार है उसे पता है कि हम ईवीएम से सरकार बनाए हैं, हमें किसानों की वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल लेकिन जो ये आपके जो पंजाब के लोगों ने आंदोलन शुरुआत किया, तो भगत सिंह को याद करना पड़ेगा जो उन्होंने उस समय कहा था। जितने शहीद आंदोलनकारी थे वो उस समय शहीद हुए, और जितने थे एजेंट टाइप के वो लोग सत्ता में बैठे। तो बिल्कुल ठीक। सबको मिलकर के जी फिर से बिल्कुल एकत्रित होना सही पड़ेगा, है। बगैर एक हुए। और मीडिया, हमारी सोशल मीडिया वॉइस ऑफ मानवता है, और है हिंदी प्रदेशों में, हिंदी भाषा में उनको समझदारी होनी चाहिए। केवल पश्चिम के उत्तर प्रदेश के किसान खड़े हुए हैं, पूर्वांचल के लोग और भी लोग जो हैं वो सिर्फ एक सहमे हुए से लोग हैं, उनको भी आना पड़ेगा सर। जी जरूर। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, राम कुमार जी, आपकी बात बीच में रह गई थी। हाँ जी, बोलिए। अभी सिर्फ एक बात और भी है मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। देखिए हम भी मतलब हमारे पिताजी किसान हैं। 1 बीघा मतलब बोने के लिए हम लोग को कितना परेशान करते हैं कि जाओ खाद लेकर आओ, 1000 बोरी है, जो भी हो मतलब क्वांटिटी। तो हम लोग ढो ढो के लाते हैं, तो वो खेती करते हैं। बोलते हैं तुम लोग भी साथ रहोगे तो खेती होगा, नहीं तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। एक किसान की मतलब होता है ना कि उनके लड़के रहेंगे, थोड़ा 3 लोग मिल के खेती वेती हो जाएगा बढ़िया से। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, जो सही भी बात है। बिया मतलब बीज भी आता है, उसको भी खरीदना पड़ता है। 500 पसेरी या 1000 जो भी मतलब आता है मार्केट में, उसको भी लाते हैं। तब जाकर मतलब खेती संपूर्ण उसका जोताई भी देना पड़ता है, उसका सिंचाई भी, खुदाई भी, सब कुछ सोहनी भी करवाना पड़ता है। औरतों को काफी पकड़ पैसा, के भाई चलो खेत में। काफी खर्चा आ जाता है। हाँ। किसान छोटी किसान मोटा किसान की रकम मतलब लागत बहुत है, काफी आ जाता है। और किसान की लागत बहुत ज्यादा है, सांसद में किसान की बैठे लोग लागत ज्यादा है। सांसद में बैठे लोग बोलते हैं कि किसान का जो भी मूल्य है बता देते हैं 12,000, 10,000, ठीक है। बिना खेत में गए हुए आप ऐसा मतलब मूल्य आधारित कर देंगे तो किसान मर जाएगा ना खाए बिना। बिल्कुल अभी बिल्कुल फिलहाल सही में बात है। अब अमेरिका से रिहाना को जानते हैं, रिहाना पॉप हाँ सिंगर जी, हाँ है, जी। जो कि किसानों के सपोर्ट में आए थे। और झांसी की रानी जो बोलते हैं कंगना, उसको तो हम तो नहीं मानते हैं, झांसी की रानी है। तो बहुत जो है कि सॉरी आई डिस्टर्ब नाउ प्लीज बिल्कुल बिल्कुल आई एम बिजी प्लीज सॉरी। ये हाँ, हाँ जी, कमेंट बात, हाँ जी, कमेंट बात। अब ये हाँ टाइम की समाप्ति है। हाँ जी, वो अभी 2-3 मिनट रह गए हैं। हाँ जी, भाई गुरमीत सिंह जी, हाँ जी, 1-1 मिनट के लिए आप बोल लीजिए प्लीज, लास्ट में मैसेज। हाँ जी। हाँ जी, जैसे सभी ने बहुत अच्छा बोला है आज, और पहले हमने सभी किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की है। और मैं तो अभी अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। एक कल परसों आपने वीडियो देखी है, शिवराज चौहान जी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं किसी एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, किसी भी किसान को संबोधित कर रहे हैं। वो आपने देखी होगी वीडियो वो। तो वो किसान बोल रहे हैं जी हमारा 1 एकड़ पे 10,000 रुपए खर्चा आ जाता है। अच्छा। तो चौहान जी कहते हैं वो 1 एकड़ पे 10,000 खर्चे में आपका कितना हो जाता है, उसमें पैदावारी कितनी हो जाती है? वो बोल रहे 300 क्विंटल हो जाता है 1 एकड़ में। अच्छा, 300 क्विंटल। 300 क्विंटल। अच्छा। तो जितने भी लोग जमींदार या किसान लोग हैं वो सब हैरान हो रहे थे कि अभी ऐसी कौन सी खेती है जो 10,000 खर्च के और 300 क्विंटल हो जाता है एक एकड़ में। इतना वो तो बहुत झूठ है, मुश्किल है। तो वो नकली किसान है, वो नकली नकली किसान है। किसान है। हाँ जी, झूठे मैं भी ये बोल रहा नकली नहीं उनको। है, वो हाँ जी, ये उनको मुख्यमंत्री किसी ने ने, खुद तैयार किया हुआ किसान है। हाँ जी हाँ वही मैं बस बोल रहा बस, वो नकली किसान उनको, है। तैयार करके नकली उनको के किसी पुतला ने, तैयार किया है। हाँ हाँ मैं वही बिल्कुल। बोल रहा हूँ। अभी फिर उसके बाद उसी टाइम किसी किसान ने उनको फोन किया, जिसने बताया था 300 क्विंटल होता है। तो किसी किसान ने फोन किया, जागे हुए किसान ने, कि वो कौन सा बीज है जो 10,000 खर्च के और 300 क्विंटल पैदा कर देता है 1 एकड़ 1 में। एकड़ में। कि हम कहने लगे जी वो तो वहां से इंदौर से ले लो, वहां से
कहने लगे मैं कहीं से नहीं लेता, मैं आपके पास से लेना चाहता हूँ। आपके हाँ। पास ही वो बीज, आपके पास ही केवल बीज है वो, हाँ हाँ, जो 10,000 हाँ। खर्च करके वो 300 वो क्विंटल बीजेपी का पैदा। बीज है, बीजेपी का बीज है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है ये कि जो मोदी ने कहा ना विकास, हाँ जी। अब तक विकास मोदी का पैदा, क्योंकि जब घरवाली के पास रहना तो विकास कहाँ से पैदा होगा? तो कहने का मतलब तो कहने का मतलब ये है कि अब इनके झूठ को कि कौन से झूठ को इनके बताए, 1 2 4 10 हो तो इनका झूठ बताया, अभी 10 झूठ है। जब है ही सारा झूठ है तो क्या बताए इनको कि अभी जब आप भाई क्या झूठ, क्या अब क्या झूठ बोले। कहीं कहते हैं भाई साहब जी, कहते पीएम तो बोले थे 2014 में अच्छे दिन आएंगे, आए क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं पीएम पर तो आए बोले तो थे आए काले तो नहीं काले धन आए आएंगे, आए क्या? आए हैं, नहीं आए मोदी हैं तो अच्छे बोले दिन थे अंबानी 15 और 15 अडानी लाख हर के। एक के खाते में फ्री में आएंगे, आए क्या? हाँ। मोदी तो बोले 2 करोड़ रोजगार भी आएंगे, आए क्या? हाँ। ये सही। वो कह था, मोदी तो बोले थे बेटी पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे, तो क्या बेटी पढ़ाई, क्या बेटी बचाई? तो हाँ, किसी सही बात है। एक वादे पे तो खरा उतर जाते। कोई एक तो सही बात है, सच, सही बात है, एक तो सही हो बात इनका है। कोई सच, कोई जब भी एक तो तो कह रहे हैं वादा कोई। होता फिर भी। अब देखो हमारे लोगों की कमी क्या है, चक्कर ये है कि हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। अब ये बताओ, वो हिंदुस्तान नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? अब उनको ये पता नहीं, ये जो गुजराती आज बीच में बड़े हैं, इनका कोई योगदान नहीं है बलिदान में, कोई भी, क्योंकि ये सिर्फ एक भी नहीं। नेकरधारी हैं, ये इनके नेकर गिल्ले हो जाते हैं। हम्म, अगर किसी की गोली चलने के बाद ये सिर्फ डुप्लीकेट पे गोली चला सकते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल अपनी सही। सही की बात है। हिम्मत नहीं है कि ये ऐसा कर सके, तो इनको ना थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। और अब किसान सिखाएंगे इनको कि लाठी कैसे चलती है और सब कुछ कैसे चलता है और दांती कैसे चलती है। इनको ये पता नहीं बरसी सही कैसे बात। काटी जाती है। सही बात है। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। आप बिल्कुल सही बात है। किसान का बेटा सरहदों पर जो है आर्मी हाँ में जी, है, और हाँ किसान, जी, उनके पिता जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंध बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और ये किसान है, ये अन्न पैदा करता है, और इनके बच्चे आर्मी में, पुलिस में सरकारी नौकरी करके देश की सेवा करते हैं। हाँ जी। तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि ये 3 काले कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून बनाए, और जो नवा कानून आए वो किसानों के साथ चर्चा करके तैयार कराया जाए, ताकि किसान को लाभ हो सके। जो, क्योंकि किसान की लागत बहुत ज्यादा है, और किसान को अपना जो मूल्य है, वो अपना जो लागत है वो भी मिलती नहीं। तो इसकी वजह से किसान की प्रॉब्लम ये है, किसान 6 महीने बीज खेत में बोता है और 6 महीने उसकी रखवाली करता है। बारिश से रखवाली करता है, डंगर से रखवाली करता है, जंगली जानवर से रखवाली करता है। वो जो खेत को 6 महीने बहुत मेहनत करके वो अन्न पैदा करता है। हाँ जी। तो इसकी वजह से उसको उसका लागत मिलना चाहिए किसान को, और यही तो किसान मांग रहा है। किसान नहीं राजनीति थोड़ी नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, उसका रीजन और है ना भाई साहब, ज्ञानी किरण सिंह जी, एक रीजन और है। देखो, मैं ज्ञानी कमलजीत सिंह जी, हाँ जी, मैं 1 सेकंड बोल रहा खाली, हाँ सॉरी। जी, बोलो। हाँ जी, लास्ट देखो, ही। हाँ जी, देखो, हाँ, कहते हैं कि अभी बिना रोए बच्चे को भी दूध नहीं देती माँ, ठीक है। नहीं रहती, बिल्कुल। और जो लोग आज किस्म टीचर हैं या और महकमे के लोग हैं जिनकी तनख्वाह कई कई महीनों से नहीं मिली, उनको तो ये तनख्वाह दे नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बिना मांगे किसान को क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? इसमें हर आदमी क्यों नहीं सोच रहा है, जो इनके भगत है वो क्यों नहीं सोच रहे कि जिन्होंने महीना कितने कितने महीने काम करे उनको तनख्वाह नहीं दी। अभी हड़तालों पे हैं कितने टीचर बेचारे, तो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे। उनका भला सोचो ना, आप उनकी तनख्वाह दो ना हाँ जिनको जी, देनी है। टाइम अब हो किसान को चुका है बिना जी। बोले हाँ क्यों जी, दे रहे? अब समाप्ति की अभी सर तरफ थोड़ा आपका सबका एक प्रश्न है मेरा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है हेलो। तहे दिल से। जो भी आप आए हैं, भाई किरण सिंह जी, भाई अवतार सिंह जी, भाई अपने रामचंद्र परमार जी, और अपने साथ में जुड़े हैं अपने सम्राट डॉक्टर जी, डॉक्टर विनोद सम्राट जी जुड़े हैं, यस सर। और जो भी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। भाई गुरमीत सिंह जी गरीब का। और हम, क्योंकि आज हमारे साथ में जो हमारे अपने कीर्तनीय हैं भाई मेघ सिंह जी, उनकी सुबह सुबह बुरी खबर आई, सबको आपने सबने देखा है फेसबुक पे। आप 1 मिनट के लिए हम सिर्फ उनकी
ये आत्मा की शांति के लिए वाहिगुरु का सिमरन कर लें, क्योंकि वही हमारे साथ में जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए फिर समाप्ति है, और सबका फिर तहे दिल से वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से धन्यवाद है, क्योंकि भाई साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि जो भी, क्योंकि इंसान आया तो जाना तो है ही, हर एक ने जाना है, लेकिन दुख होता है, तो आओ हम 1 मिनट के लिए उस परमात्मा का सिमरन करें जिसको हम राम कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, हम सब एक हैं। लेकिन इन राजनीति वालों ने हमको बांट दिया है, और ऐसा बांट दिया कि आज घर घर में ऐसी लड़ाइयां हो रही हैं आपस में। मेरे साथ भी मेरे परिवार वाले नफरत कर रहे, कहते कि यार तुम मोदी के खिलाफ। मैं कहा मैं मोदी के खिलाफ नहीं, उसका जो सिस्टम है, उसने जो वादे किए, और जो, क्योंकि जब ये 2000 मैं इसको सुनता था 2011 में, तो ये बोलता था, कहते जो विदेश में पढ़े लिखे बैठे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, और जो डॉक्टर हैं, मैं सबको वापस बुलाऊंगा, उनको सुख सुविधा दूंगा, ये भी इसने वादा किया था। आज जो वहां पे पढ़े लिखे उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा है, विदेश वालों को दे देगा ये। वो बिल्कुल, जो हिंदुस्तान में बैठे वो बाहर भागना सोच रहे हैं, इनके दुख से, इनके परेशानी से। बाहर क्यों, हम आज बाहर क्यों बैठे हैं? क्यों हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। तो चलो हम 2 मिनट के लिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 गुरु वाहे 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 गुरु गुरु वाहे गुरु। 2 हाथ जोड़ के बेनती है उस मालिक परमात्मा वाहिगुरु से कि उस पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए अपने चरणों कमलों में निवास बख्श के, संबद साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, देहो सजन असीसड़ियां क्यों होवे साहिब स्यो मेल, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुरना ओजल फेरा। और परिवार नु मालिक शक्ति देवे, क्योंकि परिवार उनका परिवार है, हमारा खुद का सबका परिवार है, हम सब एक हैं। ये मानवता हमको सिखाती भी यही है, क्योंकि हम सुख में चाहे ना जाएं, सुख में बात ना करें, लेकिन हम जब किसी के साथ में दुख होता है ना, जो दुख का प्रगटावा उसके साथ जरूर करें। दुख के साथ, दुख में जब इंसान खड़ा होता है तो दुख छोटा हो जाता है। उस परिवार के साथ में हम सब खड़े हैं, और वो परिवार अपना परिवार है, हम सब अपना परिवार है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। सबका फिर वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे किसान के एक आंसू ने भारत को जगा दिया, और हकीकत में जगाया है कि आज ऐसी खुशी हरेक के दिल में है, इंडिया में, भारत में, कि हरेक का दिल खुशी से उछल रहा है, क्योंकि उनको अब आजादी मिल रही है, अब आजादी दिख रही है, अब आजादी हरेक के सामने है और हकीकत में है। और ये आजादी ऐसे ही बन जाए, ये जो किसानों ने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, उसमें सफल हो जाएं। और अरदास करें, दे शिवा वर मुहे ए है, शुभ कर्म ते कबहू ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।